Greetings, my dear kids. How are you all? I hope you all are safe and well at your home. Dear kids, today is the last day of this year 2020, and from tomorrow your winter break will start, and your winter break will be from 1st January to 10 January. It means 10 days break will be there. So I hope you will enjoy your winter break. And dear kids, on 11 January, your PTM will be there. And on 11 January, on the same day, I can say, your result will be discussed and your result will be given to your parents. So it is compulsory for everyone to attend the PTM on 11 January. And on this day, what your parents have to do? They have to bring the holiday homework notebook along with them, as well as the subject notebook. It means different subject notebooks, that is of English, Hindi, Maths, EVS, GK, computer. These notebooks, only the notebooks they have to bring on the same day. And on the same day, your parents have to submit all these notebooks, subject notebook, as well as the holiday homework, that is winter vacation work notebook. So it is compulsory for everyone to attend the PTM on the same day. Now I will discuss the winter vacation homework. Okay, dear kids, so pay attention. Now, dear kids, this is your holiday homework. Okay, the front page is, your school name is written on the cover page, Om Public School, Gohana. Class first, winter vacation homework 2020-2021. It is the session. Okay, this is the front page. I will send you the PDF of the same homework. Okay, this is the front page. Let us discuss the next page, that is, it starts from the English homework. I will discuss first. Okay, so pay attention now. First, with reference to the chapter, the babies are hungry. With reference means जो babies are hungry जो chapter है आपका, that is about the rabbit, mother rabbit family and mother bear family. Okay, write any 5 lines on the person, that is, who feeds you at your home. Feeds you means जो आपको food खिलाते हैं, आपको give करते हैं food, देते हैं food. Okay, in that chapter ना you have studied ना कि babies are feeded by their mothers. So at home, who feeds you? Your mother na. So what you have to do, my dear kids, you have to write any 5 lines on your mother. Okay, whatever you know about your mother, whatever you likes about your mother, you have to write those lines in your separate 3-in-1 notebook. You have to do these work in your 3-in-1 separate notebook. Okay, second is there, to write any 10 naming words. What you have to do? You have to write down 10 naming words, means nouns, from your surrounding. It means जो आपके आसपास आपके surrounding में जो naming words आपको दिखते हैं, that you have to write. You can write down the name of things, you can write down the name of person, you can write down the name of person. I told things you can write down the name of any places that is surrounded by you. Okay, that you have to write in your notebook. This is the second point. Let us discuss the third point of your English homework, to do 5 pages of cursive handwriting. What you have to do, my dear kids, you have to do 5 pages. आपको जो है
total 5 pages cursive handwriting you have to do in your same notebook. And the writing should be very neat and clean and beautiful. Neat and clean and beautiful. Okay. And you have to do your writing yourself. Don't take the help of your parents. Means you will write yourself. Fourth is to do reading of chapter 8 and 9 twice. You have to read chapter 8 and 9 of your English reader book. Twice means 2 times. Means you have to read them twice. 2 बार आपको उसको read करना है. Every day you have to at least read the one paragraph of the given chapters. Okay. So this is the homework of English. Now let us discuss the homework of Hindi. Okay, this is the next page. First, अपने आसपास के वातावरण में से कोई 10 संज्ञा शब्द लिखो. आपके आसपास का जो वातावरण है मीन्स आपको जो आपका सराउंडिंग है बेटा, उसमें से क्या करना है, आपको कोई भी 10 नाउन्स जो हैं लिखने हैं, संज्ञा शब्द. जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम हुआ और किसी जगह या स्थान का नाम हुआ, वो आपको लिखने हैं. सेकंड है 1 से 20 तक गिनती शब्दों में लिखो, वह याद करो. आपको मैम ने गिनती करवाई हुई है ना शब्दों में, 1 2 3 ऐसे करवा रखी है ना. तो आपको बेटा उसको क्या करना है, अपने विंटर वेकेशन वर्क में करना है. ओके. और उसको आपको साथ साथ लर्न भी करना है, और रिटन प्रैक्टिस तो आपकी हो ही जाएगी उसमें. थर्ड है हमारा, प्रतिदिन सुबह उठकर सैर पर जाएं. ये आपका जो है, आपको ये रूटीन जो है अपना मेंटेन करना है. आपको क्या करना है, डेली आपको वेकअप करना है और आपको वॉकिंग पे जाना है, और अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, उसको 5 पंक्तियों में मीन्स 5 लाइन्स में एक्सप्रेस करना है, उसको लिखना है आपने. ओके डियर किड्स, तो सभी बच्चे ये ज़रूर करेंगे. फोर्थ है, कोई 5 सुंदर लेख लिखो. इट मीन्स ये आपका सुलेख है. हैंड राइटिंग करनी है आपको 5 पेजेस, और वो अपने आप खुद आपको लिखनी है. आप अपने पेरेंट्स की उसमें हेल्प नहीं लेंगे. कोई भी अपने पेरेंट्स से नहीं लिखवाएगा, अपने ब्रदर सिस्टर की से नहीं लिखवाएगा. आपको वो खुद ही लिखनी है और अच्छे से लिखनी है. फिफ्थ है हमारा, पाठ 9 व 10 को पढ़ो. जो आपका हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 और 10 है बेटा, उसको आपको 2 बार पढ़ना है. इट मीन्स आप डेली 2 to 3 लाइन्स भी रीड करेंगे तो भी आपका ये 2 टाइम्स आराम से हो जाएगा. ओके डियर किड्स, सो दिस इज द होमवर्क ऑफ हिंदी. नाउ आई विल डिस्कस द होमवर्क ऑफ मैथ्स. रेडी? मैथ्स. फर्स्ट, टू डिप योर फिंगर इन वाटर. आपको क्या करना है, अपने फिंगर को जो है, थंब को नहीं, फिंगर को डिप करना है वाटर में, वाटर कलर्स में, टू मेक एनी 5 पैटर्न्स. और आपको उससे कोई भी डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं. ओके, एनी पैटर्न्स. टू मेक अ नंबर ग्रिड ऑफ 1 to 100. आपको नंबर का ग्रिड बनाना है, नंबर का एक टेबल ड्रॉ करना है. उसमें आपको 1 to 100 लिखने हैं. एंड कलर द इवन नंबर्स विद रेड क्रेयॉन. और जो इवन नंबर है 1 to 100 बेटा, उसको आपको रेड क्रेयॉन से कलर करना है. पहले आप लिखेंगे. एंड ऑड नंबर्स विद ग्रीन क्रेयॉन. और जो बेटा उसमें ऑड नंबर्स है 1 to 100 में, उसको आपको ग्रीन क्रेयॉन से कलर करना है. थर्ड, टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 2 to 7. What you have to do dear kids, you have to learn tables. आपको tables learn करने हैं from 2 to 7. Okay, daily you have to learn the tables. Fourth, to do any 10 sums each of addition with carry over and subtraction with borrow. आप what you have to do, you have to do 10 sum. आपको 10 addition के sum करने with carry over and 10 sums of subtraction with borrow in your homework notebook. Okay dear kids, this is the maths homework. Now I will tell you the
next subject, okay, that is EVS. First, to draw any 5 pictures of things that you use to clean the sense organs. What you have to do, आपको क्या करना है, 5 pictures उन चीज़ों की ड्रॉ करनी है जिससे आप अपने सेंस ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स मीन्स योर आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन को जो है क्लीन करते हो. ओके, दैट यू हैव टू ड्रॉ. लाइक आप ईयर्स किससे क्लीन करते हो, ईयरबड से. ओके, टंग आप किससे क्लीन करते हो, विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर. ओके, तो आपको 5 थिंग्स जो हैं वो उनके पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने. इफ़ यू कांट ड्रॉ, ओके, देन you can paste also. Okay. Second, to make a list of any 5 food items that you love to take in each of your meal. What you have to do, dear kids, you have to make a list. आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी, जैसे इन अ डे 3 मील्स आर देयर ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आपको इसमें लिखने हैं कि ब्रेकफास्ट में आप 5 फूड आइटम्स कौन कौन से लेना पसंद करते हो, लंच में आप 5 फूड आइटम्स कौन कौन से लेना पसंद करते हो और डिनर में 5 आइटम्स. क्लियर. थर्ड पॉइंट इज देयर टू पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 4 टाइप्स ऑफ हाउस. आपको क्या करना है, आपने यू हैव स्टडीड ना टाइप्स ऑफ हाउसेस, आपको 5 टाइप्स ऑफ हाउसेस के जो हैं पिक्चर्स पेस्ट करने हैं. 4 टाइप्स गिवन बेटा दैट यू फाइंड इन योर सराउंडिंग. आपको जो अपने सराउंडिंग में 4 टाइप्स ऑफ हाउसेस दिखते हैं उनकी आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी. क्लियर. पिक्चर्स जो है पेस्ट करनी है. फोर्थ, टू राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 सोर्सेज ऑफ वाटर. आपको क्या लिखना है, नेम्स लिखने हैं जहाँ से आपको वाटर मिलता है, सोर्सेज ऑफ वाटर, एंड पेस्ट देयर पिक्चर इन योर नोटबुक. और उनकी जो है पिक्चर आपको अपने नोटबुक में पेस्ट करनी. सोर्सेज ऑफ वाटर है आपका बेसिकली रेन. ठीक है, लाइक दिस, रेन से आपको वाटर मिलता है. और कहाँ कहाँ से आपको सोर्सेज से वाटर मिलता है, डेट यू हैव टू राइट. ओके डियर किड्स, और उसकी पिक्चर भी आपको पेस्ट करनी है. दिस इज योर EVS. नाउ आई विल टेल यू द GK होमवर्क. To paste the pictures of any 4 इंडियन लीडर्स. जो अपने इंडियन लीडर्स हैं, कोई भी 4 इंडियन लीडर्स हैं, उनके आपको पिक्चर ड्रॉ करनी, पिक्चर पेस्ट करनी है, एंड राइट देयर निक नेम्स. और जो उनको निक नेम से बुलाया जाता है जिन लीडर्स को, वो आपको लिखने. ओके, लाइक जवाहरलाल नेहरू जो है उनका निक नेम क्या है, चाचा. महात्मा गांधी, उनका निकनेम क्या है, बापू. ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू. सेकेंड, टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द साइज ऑफ मून. आपको ऑब्जर्व करने हैं चेंजेस साइज ऑफ मून. मून के जो साइज है वो डेली आप सभी जो है ऑब्जर्व करेंगे, वो चेंज होता रहता है. ओके, डेट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड ड्रॉ योर ऑब्जर्वेशंस. जो डेली आप नोट करते हैं, आपको रात को मून को देखना है, जैसे भी आपको दिखता है वो आपको वैसे ही उसको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में ऑब्जर्वेशंस को. थर्ड, टू राइट एनी 10 कंपाउंड वर्ड्स दैट यू फाइंड इन योर होम. आपको क्या करना है, 10 कंपाउंड वर्ड्स जो आपको अपने घर पे दिखाई देते हैं, लाइक की चेन, ओके, टेबल, स्पून, लाइक दिस यू हैव टू राइट. ओके, this is your GK work. Now let me discuss the next subject, that is of computer. Okay, first, to draw the different parts of computer. आपको क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है parts of computer like monitor, CPU and keyboard in paint program. आपको ये सब कहाँ ड्रॉ करना है, पेंट प्रोग्राम में. ओके, क्या क्या ड्रॉ करना है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड जो हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, टू ड्रॉ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इन पेंट प्रोग्राम. पेंट प्रोग्राम में कंप्यूटर में ड्रॉ करना है. बट इफ अगर आपके घर में कंप्यूटर नहीं है
If computer is not at your home, you can draw in your notebook. वैसे तो आपको इसको पेंट प्रोग्राम में ड्रॉ करना है अपने कंप्यूटर में, लेकिन अगर आपके घर पे कंप्यूटर नहीं अवेलेबल है तो आपको इस डिफरेंट पार्ट्स को अपने नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में, वेकेशन होमवर्क नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है. सेकेंड, टू रीड चैप्टर 8. यू हैव टू रीड चैप्टर 8. जो आपकी कंप्यूटर बुक में चैप्टर 8 गिवन है, दैट यू हैव टू रीड केयरफुली. नाउ let us discuss your next subject work, that is of drawing. First, only one homework is there in your drawing. Let me read that. To make a snowman. आपको क्या करना है? एक snowman draw करना है, make करना है, बनाना है उसको. कैसे? With the help of waste material. snowman जो है वो आपको कैसे बनाना है? जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके हेल्प से आपको जो है स्नोमैन बनाना है. ओके, दैट इज ड्रॉ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. ओके डियर किड्स, नाउ दिस इज द लास्ट पेज ऑफ योर होमवर्क, दैट इज नोट इज देयर टू डू ऑल द वर्क इन सेपरेट 3-in-1 नोटबुक. आपको जो भी ये वर्क है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, जीके, कंप्यूटर एंड ड्राइंग, ये सभी आपको कहाँ करना है? एक सेपरेट नोटबुक आपको मेंटेन करनी है. 3-in-1 नोटबुक आपको परचेज करनी है और ये विंटर वेकेशन वर्क सभी सब्जेक्ट्स का आपको उसमें ही कंप्लीट करना है. द वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. और जो भी आप अपना वर्क करेंगे बेटा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए. एंड यू हैव टू डू योर सेल्फ. और आपको मैक्सिमम वर्क अपने आप ही करना है. यू कैन टेक हेल्प, बट आप अपने पेरेंट्स से राइट नहीं कराएंगे. ओके, एंड वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सबमिट this 3-in-1 notebook after completing your vacation work on 11 January. Okay, as I told you in the starting, as per that you have to submit your vacation work notebook as well as your subject work notebook, that is fair notebooks of English, Hindi, Maths, EVS, GK and Computer on 11 January in school campus. Okay, and PTM will be there. So these things you have to keep in your mind. Now after this video, I will send you the PDF of holiday homework, that is winter vacation homework, that from that you have to do your vacation work. So enjoy your break my dear kids, and happy new year to all of you from my side. Bye dear kids, have a nice day.